A very good morning, students. Today we are on second part of our chapter, that is the chapter number 10. Chapter 10, and the name of the chapter is Reaching the Age of Adolescence. Reaching the age of adolescence. Right? Today we will do the topic development of sex organ. Development of sex organs. अब जो some organs are inside the male and female body which going to be changed due to the harmonical changes in the puberty age. Now let us see what happened. In the age of puberty की age में, if we talk about the male sex organ, male sex organ, which sex organ we are talking about here? Testes and penis. In this age, puberty age, this completely develop. ये जो completely develop हो जाते हैं. How? The testes, they starts begin. Testes क्या कर देती हैं? They starts begin sperms. They starts begin sperms. उस sperms को रिलीज करना और प्रोड्यूस करना they started. Okay. Now, if we talk about the puberty age of female sex organ, then what happens? Their ovaries start increasing in size. They enlarge in size. What? Ovaries. Ovaries enlarge in size. Okay. They become mature. Ovaries क्या हो जाती हैं? Mature. Fine. ओके. सो उनकी जो ओवरीज की साइज है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है और मैच्योर हो जाती है. फाइन. नाउ दे विल स्टार्ट, मैच्योरिटी जैसे गेन हो गई तो दे विल स्टार्ट रिलीजिंग एग्स. दे विल स्टार्ट रिलीजिंग eggs. Okay. Now what we have done, let us revise it once again. That development of sex organs, male and in female, the developing of sex organs started during the age of puberty. In the case of male, the testes and penis are completely developed and the testes are ready to begin the
formation of sperms, whereas in female the maturity of ovaries is done, their size has been enlarged, and they are ready, or they can release release the eggs from their ovaries, right? So these two type of development of sex organs in the case of male as well as female. Fine. Now one more change is started developing in them, that is the reaching mental, intellectual, and emotional maturity. Okay, now we will study some more changes related to their emotional, social, and the mental growth. You must have noticed that yes, at the age of adolescence, some type of changes started developing in them. In case of thinking, they are starting overthinking, वो overthinking start कर देते हैं, and they will become insecure. कभी कभी insecure हो जाते हैं. There are some emotional changes in them. They started weeping without any reason, रोना start कर देते हैं, overthinking start कर देते हैं, tension लेने लग जाते हैं, right? तो ये सब चेंजेस जो हैं बेसिकली दीज आर द चेंजेस ड्यू टू द हार्मोनिकल चेंजेस इन देम. जो प्यूबर्टी की एज में जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये उनकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं, एंड ड्यू टू देम क्या स्टार्ट हो जाता है उनके अंदर हार्मोनिकल चेंजेस, और इसी की वजह से उनमें ये जो है डेवलपमेंट आ जाती है. लाइक द मेंटल ग्रोथ उनकी अच्छी हो जाती है. उनके अंदर सबसे मेन जो है वो इमोशनल ग्रोथ आ जाती है, सोशल ग्रोथ एज वेल एज, ठीक है. उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनको जो याद करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट. So these type of changes started developing inside them. I'm writing one by one what actually changes occurring inside them. First one is the capacity of learning increases. Capacity of learning increases. जो कैपेसिटी होती है लर्निंग की वो इंक्रीजेस हो जाती है. फाइन. एंड स्पेंड टाइम ऑन थिंकिंग. वो सोचने में, मतलब थिंकिंग में ही वो बहुत सारा टाइम जो है स्पेंड कर लेते हैं, राइट. उनके जो नेचुरल पार्ट्स हैं दे स्टार्टेड ग्रोइंग अप. सम नेचुरल पार्ट्स starting growing inside them. Fine. So these are some changes which are occurring inside them, and the main changes are mental growth, इमोशनल ग्रोथ, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ,
Third part is the social growth. Okay, now we will take them one by one. What happened in mental growth? They will start thinking logically. They will start thinking लॉजिकली. ठीक है, वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देंगे. उनका अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रहा है तो उनका अपना खुद का व्यू होगा, उसको देखने का, उस पॉइंट को, उससे खुद के आइडियाज होंगे और कंसेप्ट भी होगा जो कि कंप्लीटली या समहाउ इट विल बी क्लियर इन हिज और हर माइंड. ठीक है, मेमोरी स्किल इंप्रूव होगी, उनको चीजें याद होंगी. मेमोरी स्किल गेट improved, right? So these type of mental growth occur in them. The first one is they will start thinking logically. वो logically सोचने लग जाएंगे. Logically in the case जो प्यूबर्टी एज से डाउन होते हैं, पहले वो क्या देखते हैं, लाइक कार्टून्स वगैरह देखते हैं टीवी में, एंड दे स्टार्टेड कि भाई ये रियल में होते हैं ना, है ना. वो ऐसा माइंड मेकअप कर लेते हैं कि ये जो आपकी स्पाइडरमैन है, कैप्टन अमेरिका है, टॉम एंड जेरी है, ये सब क्या हैं, ये रियल है ना. वो इनको रियल मान लेते हैं, रियल हीरोज, एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग देम, राइट. बट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जो उनको है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जो उनके माइंड में जो है ये क्लियर हो जाता है, नो दिस इज नॉट रियल, ये रियल नहीं है. ओके, उनके माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि ये रियल नहीं है. वो थिंकिंग उनकी जो है लॉजिकली हो जाती है कि ये सब कार्टून है, एनिमेशंस हैं, दे आर नॉट रियल. ऐसा तो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता. ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो फालतू की इन्होंने एबिलिटीज दिखा रखी हैं, ये तो होती ही नहीं है. ह्यूमन बींग कैन नॉट फ्लाई, ह्यूमन बींग उड़ नहीं सकता, राइट. सो ये जो लॉजिकली थिंकिंग है ये प्यूबर्टी एज में बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाती है. अगर किसी आइडिया पे डिस्कशन चल रहा है, यानी कि आप न्यूज़ देख रहे हो, तो न्यूज़ के अंदर भी आपको ये पता होता है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर लीडर बोल रहा है ये सही बोल रहा है, ये हमारे फ्यूचर के लिए सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, राइट. तो ये सब थिंकिंग उनकी लॉजिकल थिंकिंग उनके माइंड में आ जाती है. उनके खुद के व्यूज़ होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, राइट, है ना. सो ये जो थिंकिंग लेवल आता है उनके अंदर, दे स्टार्ट इट दिस इज नोन एज द मेंटल ग्रोथ. उनकी मेमोरी जो है इम्प्रूव हो जाती है, उनको चीज़ें याद रहने लग जाती हैं कि हाँ ऐसा कहाँ हुआ था. छोटा बच्चा है वो भूल जाता है कि उसने वो चीज़ कहाँ पर रखी है ना, पर्टिकुलर कोई चीज़ अगर उसने रखी है तो वो कहाँ पर रखी है, राइट. ये इंसिडेंट हुआ था तो ये कब हुआ था, उसको याद नहीं होता, राइट. बट जब जैसे ही प्यूबर्टी एज आ जाती है तो उसकी जो मेमोरी है वो जो है वो शार्प हो जाती है, उसको चीज़ें याद रहने लग जाती हैं. सो ये भी क्या है आपका प्यूबर्टी एज के अंदर जो चेंजेस आते हैं. द फर्स्ट वन इज द मेंटल ग्रोथ. नाउ इमोशनल ग्रोथ. इमोशनल ग्रोथ मीन्स वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है उनका इमोशनली जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इमोशनली टच होने लग जाते हैं ना, चेंजेस आने लग जाते हैं उनके अंदर, इमोशनल चेंजेस. वो ध्यान रखते हैं किनका, अपने फ्रेंड्स का, मीन्स वो केयर करते हैं अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की. दे स्टार्टेड केयरिंग, राइट. वो उनका मूड स्विंग होता है, मूड स्विंग. एकदम से उनका मूड बहुत अच्छा हो गया तो दे विल बिकम हैप्पी, बहुत खुश हो जाते हैं. और फिर उनका मूड अगर सही नहीं है तो अगर कोई रीज़न भी नहीं है तो तब भी वो सैड रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं. एंगर आ जाता है उनके अंदर, गुस्सा आ जाता है उनके अंदर,
छोटे छोटे जैसे आपके छोटे भाई बहन है वो आपको परेशान करने लग जाते हैं, तो आप क्या हो जाते हो, आप एंग्री हो जाते हो, है ना, आपके अंदर गुस्सा आ जाता है एकदम से कि ये वाई दिस चाइल्ड इज सो मच एनोइंग, ये मुझे क्यों परेशान कर रहा है, एंड ऑल दैट, राइट, इसने मेरी नोटबुक को क्यों टच किया. सो सच टाइप ऑफ मूड स्विंग स्टार्टिंग, इसने मेरी ड्रेस क्यों पहनी. तो इस चीज़ के ऊपर क्या हो जाता है, उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं. बेसिकली वो अपने आप नहीं कर रहा है, वो क्या कर, उसके अंदर वो इमोशनल ग्रोथ हो रही है. क्या हो रही है उसके अंदर, इमोशनल ग्रोथ, जिसकी वजह से उसके अंदर ये सडन चेंजेस आ रहे हैं. राइट, ही स्टार्टेड हेल्पिंग अदर पीपल, वो पुअर पीपल्स की हेल्प करता है. ही स्टार्टेड हेल्पिंग अदर पीपल, स्पेशली द पुअर पीपल, नीडी पीपल, जिसको ज़रूरत होती है उसकी वो हेल्प करने की कोशिश करता है. राइट, नीडी पीपल की क्या करता है, वो हेल्प करता है. He is getting interest in the opposite sex, getting interest in opposite sex. Fine. So these type of emotional growths developing in them. Fine, beta. Now we will talk about the social growth. कि how socially changes coming inside a person who is at his puberty age, like the social growth. Yes, वो अपने आप को एक पर्सनल आइडेंटिटी दे देता है कि हाँ मैं ये हूँ, आई एम द एल्डर वन ऑफ दिस हाउस, मैं इसका बड़ा भाई हूँ तो ये मेरी बात मानेगा. आई एम द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, आई हैव टू, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है. तो ये सब क्वालिटीज़ उसके अंदर जो है डेवलप हो जाती हैं. इन केस ऑफ मैच्योरिटी, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है. राइट, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी मानता है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है, डेवलपिंग इंडिपेंडेंस, developing independence. Starting preparing about the career, वो अपने करियर के लिए सीरियस हो जाता है कि मुझे लाइफ में आगे क्या बनना है, मुझे अपनी जो पढ़ाई है वो बेसिकली वो अपने पेरेंट्स का वेट नहीं करता कि मेरे पेरेंट्स मुझे होमवर्क कराएंगे आके बिठा के. नो, उसको पता है उसको अपनी लाइफ में क्या बनना है, उसके एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो उसके लिए अपने आप ही अपना माइंड मेकअप कर लेता है. And he started focusing on his work and is starting growing. Fine, वो अपने फ्यूचर, अपने करियर, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ क्या करने लग जाता है बेटा, he is starting taking caring of them. वो फोकस होने लग जाता है और उस पर वर्क करता है. क्लियर? ओके. नाउ आई थिंक हमने जो अभी पढ़ा है इसके अंदर चेंजेस आए हैं, कौन से चेंजेस, और यू कैन से ग्रोथ जो हमने पढ़ी है, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ एंड सोशल ग्रोथ. दे स्टार्टेड डेवलपिंग एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी की एज में जो है ये ग्रो होने लग जाते हैं बेटा. नाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. अब जो है हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे. व्हाट आर दे? ये तो हमने पढ़ा था क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. ये तो जो लाइक वी हैव रेड अबाउट द जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं विच वी कैन नॉट सी, हम उनको देख नहीं सकते हैं, लाइक द साइज ऑफ द ओवरी, like the testes started releasing the sperm, right? So these type of changes are known as the primary sexual characters. Some are the secondary sexual characters inside the human being. We will read about them now. Secondary sexual
characters. Okay. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे तो हम बात करते हैं अबाउट द टेस्टिस, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस, ओवरीज, है ना. व्हाट दे डू, इट प्रोड्यूस द male cell and it produce the female cell. है ना. Due to them only in girls what type of changes are starting developing at the age of puberty during the sexual secondary, if we talk about the secondary sexual characters. So what are the secondary sexual characters in the male and female body? So in the female body, what happened? The size of the breast increases. Fine. And in male, what happened? फेशियल हेयर, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, फेस पे जो है बाल आने लग जाएंगे, फेशियल हेयर. जैसे तो मॉस्टेशस एंड बियर्ड, mustaches and beard. Okay. They started developing the hair on their chest. Developing hair where? On chest. Both male and female hair grows under their armpit. Okay, under their armpit. And the area between thigh, and that area is known as pubic region. Pubic region. Now, such type of changes inside the human body is controlled by, कौन इन changes को control करता है human body के अंदर? That are called the hormones. That are called the hormones. यानी कि hormones का function क्या हो गया बेटा यहाँ पर? The changes inside, the changes inside the changes which occurs at adolescence are controlled by, कौन को कंट्रोल करता है? हॉर्मोन्स. राइट. जो चेंजेस, ये जो हमने चेंजेस बताए हैं इनसाइड द मेल एंड द फीमेल बॉडी,
बेसिकली दे आर कंट्रोल्ड बाय दीज हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स होते हैं. व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स होती है, फंक्शन तो हमने लिख दिया कि जो चेंजेस होते हैं एडल्सेंस में वो सभी को कंट्रोल करता है. कौन? हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं उसको. हॉर्मोन्स होते क्या हैं? ये तो उसका फंक्शन है. व्हाट एक्चुअली हॉर्मोन्स आर? सो हॉर्मोन्स क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं हमारे केमिकल सब्सटेंसेस. कौन होते हैं ये? केमिकल सब्सटेंसेस. फाइन. ये होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस. ये केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज कौन करता है? दे आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जितने भी हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो सब रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? केमिकल सब्सटेंसेस. ओके. और उसका काम क्या होता है? दे कंट्रोल द or due to them changes occurs inside the adolescence age. Okay, now अब हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ. राइट. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? ओके. चलो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़ लेते हैं पहले, जो आपकी बुक में टेबल भी है. दैट इज द टेबल नंबर 10.2. No. I think that topic is cannot be easily completed today. So we'll take some another topic. Today I'll tell you about the endocrine system. Endocrine system कहते किसको हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है बेटा हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं. लेट अस सी व्हाट आर एंडोक्राइन सिस्टम. ओके. Okay, the endocrine system जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेटा वो वर्क करता है नर्वस सिस्टम के साथ. नर्वस सिस्टम हमारा होता है ब्रेन में. नर्वस सिस्टम के साथ वो वर्क करता है. और बेसिकली ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या रिलीज करता है? केमिकल सब्सटेंसेस, जिनको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं. अभी पढ़ा था हमने केमिकल सब्सटेंसेस, हॉर्मोन्स. ऑब्वियसली ये रिलीज करेंगे तो आप सोचते होंगे कोई ट्यूब्स लगी होंगी तो उन ट्यूब्स से जो है ये रिलीज कर देता होगा, बट ये ट्यूबलेस होते हैं. कोई ट्यूब नहीं होती. ये डायरेक्टली जो है अपना केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर देते हैं. किसके अंदर? ब्लड के अंदर. किसमें रिलीज कर देते हैं ये? ब्लड के अंदर. रिलीज इनटू द ब्लड डायरेक्टली. एक वर्ड यहाँ आना चाहिए, डायरेक्टली. ओके. कोई ट्यूब्स की हेल्प नहीं लेते ये. ओके. हमारी बॉडी की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं. दे रेगुलेट, ये इसका फंक्शन हो गया है, रेगुलेट मेटाबॉलिक एंड अदर एक्टिविटीज़ inside our body. Inside our
body. बेसिकली ये जो हॉर्मोन्स हैं हमारे, ये हमारे ग्लैंड्स रिलीज करते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। हॉर्मोन्स जो हैं हमारे कंप्लीट बॉडी पार्ट में कैरिड आउट होते हैं, क्योंकि ब्लड में ये रिलीज करते हैं। तो ब्लड तो हमारा कंप्लीट बॉडी में रन करता है, फ्लो करता है ना। बट इसका जो इफेक्ट आता है, अब जो ब्लड है वो तो हमारे सभी ऑर्गन्स में से मूव करता है, तो इसका इफेक्ट भी मतलब हमारे सभी ऑर्गन्स में होता होगा? नो, मूव तो करता है बट इसका जो इफेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ही होता है, एक या दो पर्टिकुलर पार्ट्स पे होता है उसका इफेक्ट। किनका? हॉर्मोन्स का। क्योंकि केमिकल सब्सटेंसेस, हॉर्मोन्स क्या थे? केमिकल सब्सटेंसेस जो रिलीज हुए थे। किसने रिलीज किए थे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने रिलीज किए थे। और सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अगर हम बात करें, डेट इज नोन एज द एंडोक्राइन सिस्टम। और ये किसके साथ वर्क करता है? नर्वस सिस्टम के साथ वर्क करता है। क्लियर? सो टुडे वी विल डिस्कस अप टू हियर ओनली. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल proceed our next topics. Till then, keep on reading the book, and if you face any doubt you can ask me. Thank you beta, thank you so much.